Hello, Matujiman. You're watching Morning Pulse on Onblock TV. Stock market expert Sunil Shah said the markets opened with a sharp decline, which was largely in line with expectations, and investors had anticipated that the ongoing blockade would end over the weekend. However, with no signs of resolution yet, crude oil prices have surged by nearly $5 a barrel. He noted that adding that rise in crude oil prices typically exerts downwards pressure on Indian market. Well, markets have opened with a deep cut on expected lines, because last week we saw the markets were under the opinion and view that this blockade will end by the weekend, but there are no signs of it. So crude oil has jumped by $5, and whenever crude oil goes up, our markets go down. And again, the longer the situation remains of elevated crude oil prices, bad for the market and bad for the Indian economy. And that's the reason that still it is above $100 mark. And all our assumption regarding our economic growth, corporate profit growth, corporate top line growth were based on the crude oil remaining between $65 and $70. Now that is obviously not happening, and now this is the third month where the crude oil prices are at an elevated level. That will have a negative impact on our economy and our corporate earning. So that will also have, and because of the blockade, we are seeing our exports are hit. There is a slowdown in demand world over. A global economy will slow down. That will hit our export. So we will have pressure on our currency, because we have to we are importing 70 to 75% of our energy needs from overseas, and high oil prices mean we have to pay more for the energy. That will have pressure on our current account deficit, and when there is a pressure on current account deficit, the rupee will be under pressure. So that is one more reason. So in all markets, that will get adjusted over the years, but not anytime soon. And that's the reason that I feel and I hope that the blockade is removed and crude oil prices come back to its normal level, which will help our economy and the capital markets as well. Also, one more thing has added to this nervousness is yesterday's Prime Minister statement, where he has urged the fellow citizen to be using the energy judiciously, and nothing wrong in that. And then, you know, that cut down on your foreign trip unnecessary. What he meant was that when there is no necessity, don't spend that money where it will have impact on our currency. So let's hope that things improve from here. Thank you. And also he has spoken about, to defer your gold purchases, because we import after energy, it is gold, which is largely import. So if we don't buy gold, the import of gold will go down, and that will have positive impact on our currency. Thank you. Bihar Minister Dilip Jaiswal, reacting to Prime Minister Narendra Modi's remarks on the West Asia conflict during his speech in Secunderabad, said the Prime Minister had appealed to citizens in view of the global crisis affecting the world. He noted that India remains dependent on Gulf countries for diesel and petrol supplies, and highlighted that tensions involving Iran, Israel, the United States and the Strait of Hormuz have continued for a long time, raising concerns over the impact of global stability and energy security. पूरे देशवासियों से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है, अनुरोध किया है कि जो वैश्विक संकट अभी पूरे दुनिया में छाया हुआ है, और इस वैश्विक संकट में तेल, डीजल और पेट्रोल का खर्च में कटौती करने के लिए देशवासियों से उन्होंने अपील किया है, क्योंकि हम डीजल और पेट्रोल के मामले में खाड़ी देशों पर निर्भर करते हैं, और बहुत ही लंबे समय से ईरान, इजराइल और अमेरिका का समस्या चल रहा है, और हॉर्मुज का भी समस्या चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि तेल की बचत हम करें, और दूसरा, जितना सोना हम खरीदते हैं उतना हमारा पैसे का मूल्य जो है डॉलर के रेशियो में कम हो रहा है, इसीलिए एक साल सोना नहीं खरीदें, इसका भी उन्होंने अपील किया है।
लेकिन कांग्रेस है, केशव वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध को है 3 महीना होगा और पीएम मोदी को अभी भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को अभी तक अनजान ही है। देखिए, कांग्रेस का आदमी सिर्फ गाल बजाता है। देश कैसे चल रहा है 140 करोड़ का इस वैश्विक संकट में, उनको तो नरेंद्र मोदी जी का पूजा करना चाहिए। लेकिन ये सभी लोग देश के प्रति, इनको कोई कांग्रेसियों को चिंता नहीं है और हर वक्त राष्ट्र विरोधी काम ही करते हैं, देश के विरोध में बोलने का ही काम करते हैं। इन कांग्रेसियों को तो इंसान क्या भगवान भी सजा देगा। जिस तरीके से केरला में जो चुनाव हुआ, सीएम चुनने में देर तक पीएम ने भी तंज कसर, कहा बहुमत के बावजूद भी ये सरकार नहीं बना पाई। सही बात है। आज हमने बंगाल का सरकार बना लिया, आसाम में नेता का चयन हो गया, 12 तारीख को वहाँ भी ओथ है। और इसी तरह जो एनडीए गठबंधन है 5 पांडव के तरह, और सभी काम समय पर हम लोग कर रहे हैं। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है आज भी इस तरह की समस्या है। सोमनाथ मंदिर का आज जो है हम लोग सदी के सबसे बड़े जो ये है मंदिर का हम लोग आज ये मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान भी किया है कि सोमनाथ मंदिर के ये कार्यक्रम में जो है सभी लोग जहां भी हैं वो अपनी श्रद्धा दें, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लूटा गया और महादेव की कृपा से वो सोमनाथ मंदिर वहां पर स्थापित है। केशव ने ट्वीट किया है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, फिर सवाल खड़े किए कि बिहार में बीजेपी के जिस तरीके से विधायक है मुजफ्फरपुर में एक आम आदमी को मार रहे, गुंडागर्दी कर रहे, उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को अब कोई काम नहीं है। कोई साइकिल से टकरा गया तो उसको वो मुद्दा बनाएंगे। पहले क्या हुआ है नहीं हुआ है इसकी जानकारी ले, तब इस तरह की बातें करें। Prime Minister Narendra Modi said that restoring cultural and religious heritage is linked to national self-respect, referring to reconstruction of the Somnath temple after independence. The Prime Minister praised Sardar Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad for their efforts in rebuilding the temple despite opposition. He also said similar resistance was witnessed during the reconstruction of the Ram Mandir and stressed the need to move forward with both development and heritage together. शुद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहेजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है।
राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। Pushkar Singh Dhami praised Narendra Modi for strengthening India's defense sector and fulfilling long-pending demands of soldiers' families since 2014. Marking 1 year of Operation Sindoor, Dhami said that India's army has become self-reliant and that India now exports defense equipment to over 80 countries. He also said that during the recent crisis, the Prime Minister held meetings with chief ministers and urged states to explore alternatives to petroleum and gas consumption, while also advising people to avoid unnecessary foreign travel. देखिए 2014 में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बहुत पुरानी मांगों को सबको लगातार उन्होंने पूरा किया। सैनिकों को मनोबल को लगातार बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने हर प्रमुख दिवस जो हमारे देश के पर्व होते हैं, होली, दिवाली, ऐसे दिनों पर हमेशा सेना के बीच में जाते रहे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों के घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस-नहस हो गया और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण हैं आज भारत बना रहा है। उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया। 80 से भी अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण भारत सप्लाई कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज भारत की सेना को भी आदमी सर, पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि जो आवश्यकता है, जो ऊर्जा संसाधन है, उसको कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाए। सर, इसमें राज्य सरकार क्या अपनी ओर से कुछ इनिशिएटिव ले रही है कि तेल की खपत कम हो या इस तरह की? देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूंकि जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूँकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूं कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। सर, मंत्रियों और विधायकों या अफसरों को कुछ हिदायत दी जाएगी कि वे अपनी फ्लीट कम करें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने आप उसका अनुसरण करेंगे। सर, अवैध मदरसों को लगातार कार्रवाई की जा रही है, उस पर कई अवैध मदरसों को अब तक ध्वस्त कर दिया गया है। मिड डे मील को भी लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर आने वाले समय में? देखिए, हमारी सरकार ऐसी सरकार है जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं जो भी मुद्दे हैं, जहाँ पर भी समस्या है उस समस्या को समाप्त किया जाए, उस समस्या का हल निकाला जाए। सर, संजय धाम बनकर तैयार है, लेकिन कब कोई प्रधानमंत्री आएंगे या फिर
रक्षा मंत्री आएंगे, नहीं, कब आएंगे? हम लोग जल्दी से जल्दी सैन्य धाम जो है जनता को समर्पित करेंगे, राज्य को समर्पित। सर, नितिन नवीन जी आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कोई 2027 की तैयारी देखने को मिलेगी नितिन नवीन जी के आने से? नहीं, उनका व्यापक कार्यक्रम रहेगा, उसमें सभी संगठन से लेकर चुनाव से लेकर सभी पहलुओं पर। सर, 2 दिन का अलर्ट है, यात्रा भी चल रही है, ऑरेंज अलर्ट भी है, उसको लेकर आपने भी निर्देशित किया होगा देखिए, मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा तो इस प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। Danish Azad Ansari backed Narendra Modi over his remarks on the West Asia conflict, saying the Prime Minister has consistently prioritized national interests and resource management. Ansari says citizens across communities have supported the Prime Minister's appeal aimed at the country's welfare. He also took a swipe at the opposition, alleging that parties like the Indian National Congress and the Samajwadi Party are unhappy with the government's development-focused approach. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमेशा इस बात पे बल दिया है कि देश के हमारे जो संसाधन हैं, देश के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनका सदुपयोग हो और हम देश हित के लिए, देश हित सर्वोपरि इस भाव के साथ देश का हर नागरिक काम करे। 2014 से लेकर अब तक लगातार हम सब ने देखा किस तरीके से मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार ने काम किया। आज जो वैश्विक घटनाक्रम चल रहे हैं, उस घटनाक्रम को देखते हुए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे सकारात्मक सुझाव देश को दिए हैं। और एक अच्छी बात इस डिकेड में देखने को मिली कि मोदी जी ने जब भी जो सलाह देश को दिया, पूरे देश के एक एक व्यक्ति ने, हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने मोदी जी पे विश्वास जताते हुए उन सलाह को माना भी है। हमारा भारत देश समृद्ध बने, खुशहाल बने, ये हमारी मोदी जी की सोच है, ये हमारी पार्टी की सोच है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच है। और यकीनी तौर पे इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए बड़ी गंभीरता से हम सभी काम कर रहे हैं। अब वहीं कांग्रेस हो या सपा हो, वो ट्वीट करके कह रही है कि बीजेपी ही देश के लिए संकट है। देखिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए जो पार्टी और जो नेता संकट में थे, वो जो देश के लिए और जो पार्टियां संकट की थी, वो उन पार्टियों को देश ने पहले ही साइडलाइन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट था, इसलिए 2014 में देश की आवाम ने कांग्रेस पार्टी को ये जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा संकट हुआ करता था, जिसको लोग समाजवादी पार्टी के नाम से जानते थे। उसी समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता जनता ने दिखाया। तो जनता ने जो संकट है उसको देखा और संकट को दूर कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए काम हो रहा है और देश का यही विकास विपक्ष को, खासतौर पे कांग्रेस और सपा को पसंद नहीं आ रहा। कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया कि 9 साल में विकास नहीं हो पाया, आप 3 महीने में क्या। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जब अपने एसी कमरों से बाहर निकलेंगे तब उन्हें उत्तर प्रदेश का विकास दिखेगा, तब उन्हें जेवर का एयरपोर्ट दिखेगा, तब उन्हें गंगा एक्सप्रेसवे दिखेगा, तब उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखेगा, तब उन्हें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिखेगा, तब उन्हें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे दिखेगा, तब उन्हें उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर दिखेगा, तब उन्हें उत्तर प्रदेश का रोजगार दिखेगा, तब उन्हें उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं दिखेंगी, तब उन्हें उत्तर प्रदेश का अपराध मुक्त माहौल दिखेगा, तब उन्हें उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त माहौल दिखेगा। तो अच्छी चीज़ें देखने के लिए कमरों से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अपना एसी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो आज भी एक एआई जो आजकल चला है, वो आर्टिफिशियल एक दुनिया में समाजवादी पार्टी के नेता रहते हैं, लेकिन यथार्थ पे, धरातल पे सच्चाई जो बयान दे रहे हैं उससे बहुत कोसों दूर है। आज प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश के हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे भारत देश का विकास हो, ये हम सबकी प्राथमिकता है। Union Minister Shivraj Singh Chauhan announced that the notification for the Viksit Bharat Ji Gram Ji Act has been issued, under which rural workers will receive 125 days of employment annual from July 1, replacing the existing 100-day provision of MGNREGA. He further stated that all provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act will continue to remain in force during the interim period.
विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं, साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन हमारी चिंता है कि इस ट्रांजिशन पीरियड में कोई मजदूर भाई बहन जो काम चाहता हो वो रोजगार से वंचित ना हो, इसकी संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए, लेकिन 1 जुलाई के बाद से अगर 1 जुलाई तक कोई राज्य अपेक्षित तैयारी नहीं कर पाया तो 1 जुलाई के बाद फंडिंग पैटर्न कामों का विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत होगा। और विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अधिकांश राज्यों ने अपवाद छोड़कर अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है। और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो ये 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। और 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.